Welcome back to Reflection Physics Class 10th. This is additional video to know basics of reflection in order to form images in concave and convex mirrors. First of all, we have to find out the pattern in which rays of light will be reflected back after reflection through concave surfaces. First of all, I have prepared a key of color. I am introducing. I have taken this light blue color for mirror. This is our mirror. Here, incident rays are shown in yellow color. These two are incident rays. Principal axis is shown in red. I am using red color throughout this video. And reflected rays are shown in blue color. So rule 1. This is rule 1 for reflection of light. Reflection of light when they strike concave or convex mirrors. First of all, we have to take a pair of incident rays parallel to principal axis. Any incident ray, कोई भी incident ray, this is incident ray, which is parallel to principal axis, जो principal axis के parallel हो, will be reflected back through focus. After reflection, these are point of incidence. These will be reflected back through focus. ये फोकस के अंदर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे. सो पहला रूल आपके पास है, रूल लिखा हुआ है आपके पास. एनी इंसिडेंट रे विच is parallel to principal axis, after reflection they will be reflected back through focus. Remember, this is rule 1. किसी भी इमेज फॉर्मेशन में हम 4 केसेस में से कोई 2 केस फॉलो करेंगे. इसको आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है. साइन कन्वेंशन में यूज कर रहा हूं. दिस इज पोल ऑफ mirror, this is focus, and this is center of curvature. You might have learned it earlier. यदि ये क्लियर नहीं है तो मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत बेसिक और शामिल कर दूं. दूसरा केस हमारे पास है any incident ray through focus will be reflected parallel to principal axis. This is converse of rule 2 is converse of rule 1. जो हमने rule 1 में लिया था, इंसिडेंट रे पैरेलल आई थी और रिफ्लेक्टेड रे फोकस के अंदर से रिफ्लेक्ट बैक हुई थी. अब ठीक इसका उल्टा है. एनी इंसिडेंट रे थ्रू फोकस. नाउ आवर इंसिडेंट रे is going through focus. When it strikes the mirror at this point, it will be reflected back parallel to principal axis. Be careful. This ray is going parallel to principal axis. This is your principal axis. This is rule 2. You can take any one of these 2 rules when you have to show image formation of object placed at different points. Again, the key is same in blue color. In this case, this mirror is concave. कॉन्केव मिरर्स में ये वाली सरफेसेस पॉलिश्ड होती है.
इस बात को आप पहले भी सीख चुके हैं। और रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, इसको पास नहीं कर सकती। शाइनिंग सरफेस इस तरफ है। केस 3 है, this is the most simplest form as you have learned in plane mirrors. Any incident ray through center of curvature, this is your center of curvature. Any incident ray, I have shown two rays coincident. I have taken different width of this line in order to show both color. One ray incidents at this point, and this is yellow line, yellow ray of light. This is incident ray. This incident ray, as it passes through center of curvature, it will be reflected back through center of curvature. Both incident ray and reflected rays will be the same. एक ही पाथ फॉलो करेंगी दोनों, कोई डिफरेंट पाथ इनका आइडेंटिफाई नहीं होगा। 9th और 10th क्लास में आपने देखा था, यदि यहां इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट हो तो इस टेंजेंट के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि परपेंडिकुलर रहता है, टेंजेंट के ऊपर रेडियस इज परपेंडिकुलर थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां पर यदि हमारे पास कोई टेंजेंट थी इस सर्कुलर रीजन की, इस मिरर के ऊपर, तो यहां 90 डिग्री का एंगल इसने इंसिडेंट रे ने बनाया। इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू 90 डिग्री एंगल। ये 10th में आप टेंजेंट्स पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। दिस इज फॉलोइंग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर विद टेंजेंट। सो रिमेंबर, रूल 3 इज any incident ray that passes through center of curvature will be reflected back through center of curvature itself. This is your case 3. I am taking 4th case, and it is so simple as you have used in plane mirrors. This is your rule 4. ये किसके बारे में आपको क्या बताता है? When any ray of light that incident on pole directly without passing through center of curvature, without passing through focus and not parallel to principal axis, directly it incident on focus, सीधी की सीधी ये इंसिडेंट रे पोल के ऊपर इंसिडेंट करती है, तो पोल के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर का रूल फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक फॉलोइंग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एज दिस पॉइंट पोल, दिस प्रिंसिपल एक्सिस इज परपेंडिकुलर, this principal axis will behave as normal, and with normal angle of incidence is equal to angle of reflection. ये आपने प्लेन मिरर में भी फॉलो किया था, सेम साइन कन्वेंशन मैंने यहां शो किए हुए हैं। अब आप किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए इन चारों में से कोई दो रेज आप छांटेंगे। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट सी के ऊपर रखा है तो सी वाली रेज को छोड़ दें। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट एफ पे रखा है तो आप एफ से गुजरने वाली रे ऑफ लाइट को छोड़ दें। बाकी इन दो केसेस को छोड़कर, जब इंफिनिटी पे रखा है तो सी से और एफ से रेज ऑफ लाइट आप नहीं गुजार पाएंगे, पैरेलल आएंगी, तो उन दो केसेस में सी और एफ से हम नहीं कोई रेज ऑफ लाइट गुजारेंगे। रिफ्लेक्टेड रेज में पास थ्रू सी एंड एफ। सो कोशिश करिए कि इन रूल्स को जब आप फॉलो करें तो बेहद आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाएं। मैं हल्का फुल्का सा साइन कन्वेंशन और ले रहा हूं। दिस इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। द वे in which we take
नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्वांटिटीज। साइन कन्वेंशन हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला। जैसे किसी ग्राफ पेपर में आप देखते थे, आपके पास दो एक्सिस होते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये है आपका वाई एक्सिस। तो यहां आप एक रूल फॉलो करते थे, एक्स एक्सिस के ऊपर की ओर होने वाला कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। वाई एक्सिस से लेफ्ट की ओर नेगेटिव वैल्यूज होंगी। ये पोल जो आपका मिरर का पोल है, ये आपका ओरिजिन की तरह बिहेव करेगा। इस तरफ की सारी मेजरमेंट जो आप पोल से करेंगे वो पॉजिटिव होंगी। यहां ग्राफ पेपर के आप ऊपर आप इसे ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन से राइट की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन, ओरिजिन से लेफ्ट की ओर नेगेटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस से अपवर्ड पॉजिटिव और एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। इन सभी चीजों को जब आप समझोगे तब आप साइन कन्वेंशन यूज कर पाओगे। मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मानता हूं। यहां हम लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां हमारे पास है कोई एक्स एक्सिस, सॉरी वाई, एक्स एक्सिस हमारे पास ये है। यदि हम कहें P के ऊपर ये एक्सिस वाई है और प्रिंसिपल एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है, तो बेहद आसानी से आप यहां साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। अब हल्का फुल्का सा हम एक और अपनी एब्रिविएशन को समझें। U को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इस U को, U है पोल से लेकर सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। पोल से सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि पोल से मापा जाएगा, सो डायरेक्शन हमारी इस तरफ आ रही है। ये कोशिश आप करिएगा, इस वजह से ये नेगेटिव रहेगा हमेशा। हमारे पास एक दो कन्वेंशन और भी हैं। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ मिरर। सो हमेशा, चाहे वो कॉन्केव है चाहे कॉन्वेक्स है, U की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। V की वैल्यू नेचर ऑफ इमेज के ऊपर डिपेंड करती है। इफ योर इमेज इज रियल और इट इज फॉर्म्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन वैल्यू ऑफ V is negative here. This measurement is to be taken from pole to the center of image. इमेज के सेंटर से लेकर पोल के बीच के डिस्टेंस को हम V बोलते हैं। दिस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। यहां हमें एक सावधानी बरतनी पड़ती है। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। हम इस पोल से सारे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, वेदर दिस इज टुवर्ड्स लेफ्ट और वेदर दिस इज टुवर्ड्स राइट। कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जहां आपकी इमेजेस इस तरफ बनेंगी, देन वी कैन टेक V एज पॉजिटिव। यदि आपका V इस तरफ है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी पोल से। यदि आपकी इमेज ऊपर की तरफ बनी है तो हाइट ऑफ इमेज आप पॉजिटिव लेंगे। यहां कुछ कन्वेंशंस मैंने दिए हुए हैं। मैं ये ऑब्जेक्ट जो आपको दिखाई दे रही है, कलर कॉम्बिनेशन से दिखा रहा हूं। इमेज, इसी ऑब्जेक्ट की ये इमेज है, ये मिरर इमेज है। कॉन्केव मिरर में ये इमेज बनी है। दिस इज इन्वर्टेड इमेज, स्मॉल इन साइज, इट्स हाइट विल बी नेगेटिव एंड इट्स डिस्टेंस विल ऑल्सो बी नेगेटिव फ्रॉम पोल। सो ये साइन आपने यूज करने हैं अपने न्यूमेरिकल्स में। मैंने यहां हल्के फुल्के से और हाईलाइट किए हुए हैं, आप इसे आसानी से समझिए। यदि कुछ कमियां रहती हैं तो फिर देख लीजिए। दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये
प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में है, इस वजह से पॉजिटिव लिया जाता है। इसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, पोल से इसके सेंटर के बीच तक की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोला जाता है, यू से डिनोट किया जाता है, एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव। पोल से इमेज के सेंटर तक का डिस्टेंस, पोल से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज बोला जाता है। इन दिस केस विच इज नेगेटिव हियर, क्योंकि पोल से ये लेफ्ट की ओर है, एंड हाइट ऑफ दिस इमेज is also negative. I have to clarify one more case. Focal length of a concave mirror is always negative. Focal length of a concave mirror is always positive. I have shown you H2 is negative. I have written here H2 height of image, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस वजह से इसकी नेगेटिव मेजरमेंट लेनी है आपने। यदि कोई इमेज हाइट आपको बता दे और रियल इमेज हो कॉन्केव मिरर में, तो आपको वहां अपने आप नेगेटिव साइन पुट करना पड़ेगा। इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव व्हेन योर इमेज इज फॉर्म्ड रियल और टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ पोल। पोल से लेफ्ट की ओर बनी हुई इमेजेस सारे के सारे डिस्टेंस नेगेटिव होंगे। इमेज डिस्टेंस मैंने v को डिफाइन किया, ये टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ p है, इस वजह से इसकी कैलकुलेशन हमेशा नेगेटिव होंगी। Let's clarify this thing. What's about focal length of two type of mirrors? I have defined focal point. What is your focus? In this case, when we deal with concave mirror, when a parallel beam of light incident on concave surface parallel to principal axis, this incident ray will be reflected back passing through same point, and this point is called focus. This is called focus, denoted by capital F. Remember, distance between P and F shown by green color, green arrowhead, is focal length. I have written here, this is the focal length and denoted by small f. इसको हम small f से दिखाते हैं। यहां देखें, ये लेंथ p से f की ओर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है। लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में p से जो मेजरमेंट करेंगे, इट विल बी नेगेटिव। सो आई हैव रिटन हियर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। यदि आपको कोई न्यूमेरिकल्स में देता है फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज सो एंड सो, वो सिंपल ये देगा फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। तो वहां पर आपको ये f की वैल्यू अपने आप सोच के बताना है कि -10 सेंटीमीटर होगी। ये आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है। दिस इज केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, शाइनिंग सरफेस इज टुवर्ड्स लेफ्ट, दिस इज योर पॉलिश्ड सरफेस। ये यहां से रे ऑफ लाइट कोई भी इस तरफ नहीं जा रही है, ध्यान दें, क्योंकि ये ओपेक सरफेस है, रेड पॉलिश्ड है, ये इसके अंदर से रेज ऑफ लाइट नहीं जाती हैं। हमारा एक्चुअल जो रिफ्लेक्शन है वो टुवर्ड्स लेफ्ट ही होता है, इस तरफ ही सारा काम इस तरफ हो रहा है, इधर कोई काम नहीं हो रहा आपका, इधर रेज ऑफ लाइट जाती ही नहीं है। सो फिर हम फोकस इस तरफ कैसे ले लें? ध्यान से सुनना। व्हेन ए पैरेलल beam, a ray of light which is parallel to principal axis fall on convex surface, they are diverged, they do not intersect towards left as they are diverging line. That's why these lenses are called diverging lens.
ये फैलती जा रही हैं और जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक हमें कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होती। यदि कोई इंसान यहां आंख से देखता है, मान लीजिए यहां कोई हमारी आंख इसे देख रही है, तो ऐसा लगता है यहां से कि ये रे ऑफ लाइट, हमें नहीं मालूम ये कहां से आई थी, हमें तो ऐसा लगेगा कि ये मिरर के अंदर से इस पॉइंट से आई है। दिस रे ऑफ लाइट, this reflected ray of light will appear to come from, not actually come from. Actual यहां से आई थी, लेकिन यहां हमें यहां बैठ के ये नहीं पता लगता कि हम कहां देख रहे हैं। यदि कोई इंसान इस तरफ से देख रहा है, यहां उसकी आंखें हैं और ये विजन एंगल उसका है, तो फिर हम ये रे ऑफ लाइट हमें ऐसा लगता है कि मिरर के अंदर से दूसरी तरफ से आई है, फ्रॉम द अदर साइड। तो दिस रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस एज वेल। ये भी ऐसा लगेगा कि किसी मिरर के अंदर से दूसरी तरफ के पॉइंट से ये आ रही है। तो ये जहां से आती हुई दोनों रेज दिखाई देंगी, वो वास्तव में फोकस पॉइंट है, इसे फोकस कहेंगे। इस वजह से ये, क्योंकि P से F का डिस्टेंस अब राइट की ओर है, हम इसे पॉजिटिव हमेशा लेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई हैव टेकन इट इन वन मोर वीडियो previously. This is to drill and this is to make you understand the basic concepts more and more in more and more detail. I have prepared this video, so kindly go through it repeatedly and with the help of your book match these situations with the given rays of light and sign convention. I will take some more examples of this topic in next video. Thank you very much for watching.